Hello friends and my dear student. Today we are learn 8th standard English subject chapter number 1.2 Androclus and the lion. Have you ever helped anyone? Why? इसका आंसर इस प्रकार से है I always help my parent at home because I owe something to them. How did you help him her? इसका आंसर है I help my mother to giving what she want in the kitchen and I help my father whenever he tells me to do some work. Third question is, has anyone ever helped you in your need? इसका आंसर यहाँ पे है one of my close friend helped me in my hour of need. Fourth one, how did you feel at the time? Fourth question, इसका आंसर है I felt very happy and satisfied. Fifth question, how did you show your gratitude to him her? इसका आंसर यहाँ पे है I show my gratitude to Nai by saying thanks and whatever I got a chance to help him, I helped him. Now second, we discuss your benchmate and write down the name of any 5 stories of bravery that you have read here. Also name the brave hero, heroine of each story. Name of the story: Naomi, the Crystal Warrior. Name of the hero, heroine: Naomi. And calling Shehmat, पावनखिंड, बाजी प्रभु, ये है पावनखिंड बाजी प्रभु, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डेविड एंड गुलियत, David. Complete the fact about lion, choosing from the alternatives. Lions are called king of the jungle, emperor, lord, king है तो king यहाँ पे उत्तर रहेगा. Lion belong to the cat, family of animal, dog, cat, horse, cat यहाँ पे होएगा. Lions are carnivorous animal, herbivorous and omnivorous. Male lion have a mane around their neck, but lioness do not have it. Cub, male, female, तो male यहाँ रहेगा. A group of lions is called a pride, flock, herd, pride. Lions attack only when they are hungry, pricked, awake and hungry. वो hungry रहते हैं तभी अटैक करते हैं. Androclus and the lion. Long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androclus, but he had a very cruel master. In those days, king, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. Androclus was a slave. The slaves were forced to work for their master. They had to do what their master told them. They had no freedom, no rights. Even when they were unhappy with their master, they could not leave him. They were bound by law to obey their master, however weak they might be. बहुत समय पहले की बात है. एंड्रोक्लस नाम का एक दयालु, नेक और विनम्र व्यक्ति था, परंतु उसका जो मालिक था बट ही हैड ए वेरी क्रूर मास्टर. उसका जो मालिक था वो बड़ा क्रूर था. उन दिनों राजा महाराजा तथा उनके जैसे अन्य संपन्न व्यक्ति लोग गरीबों को अपना गुलाम बनाकर रखते थे. एंड्रोक्लस भी एक ऐसा ही दास था. इन गुलामों से इनके मालिक जबरन काम करवाते थे. उनके मालिक जो कहते थे उन्हें करना पड़ता, तो उन्हें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं थी. दे हैड नो फ्रीडम, नो राइट. उनको कोई स्वतंत्रता अधिकार प्राप्त नहीं था. अगर मालिक उन पर अत्याचार करते थे तो भी वह उन्हें छोड़कर
नहीं जा सकते थे। मालिक उनके साथ कितना भी क्रूर व्यवहार करते फिर भी गुलाम उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कानूनन बाध्य थे। Androclus did not like the heartless, wicked master. His master starved his slave and often whipped them. Androclus felt that even death was better than serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the clutches of his cruel master. एंड्रोक्लस को अपनी जिंदगी को अपनी निर्दयी निष्ठुर मालिक से बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका मालिक गुलामों को भूखा रखता था और अक्सर चाबुक से उनकी पिटाई करता था। एंड्रोक्लस को ऐसे स्वामी की सेवा करने से मर जाना बेहतर लगने लगा। वह सही अवसर की तलाश में था। अंततः एक बार अवसर मिलते ही वह अपने क्रूर मालिक के चंगुल से भाग निकलने में सफल हो गया। नाउ although Androclus had thus run away, he was not a coward. He took shelter in forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go whatever he wished. एक दिन एंड्रोक्लस भाग निकला, परंतु डरपोक नहीं था। वह जंगल में छिप गया। उसे जंगल में विचरण करने वाले जंगली जानवरों से भय नहीं था। सिर पर छत न होने से उसे चिंता न थी। वह प्रसन्न था कि किसी पक्षी के समान वह जहाँ चाहे वहाँ जाने के लिए मुक्त था। वन डे, एक दिन जंगल में घूमते समय उसका सामना एक शेर से हो गया। हैज़ ही वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट, ही सडनली केम फेस टू फेस, आमना सामना हुआ लायन का विद द लायन। हिज फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू टर्न एंड फ्ली, बट then he saw that the lion had not moved, and seeing him, it neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if was a great pain. पहले तो लगा कि वह भाग जाए, परंतु उसने देखा कि शेर हिला नहीं। वह गुर्राया न उसने दहाड़ लगाई, बल्कि पीड़ा से व्याकुल अत्यंत दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखने लगा। किसने? लायन ने। एंड्रोक्लस पाउज्ड, वो रुक गया। He then moved and very cautiously toward the lion. Step by step, the lion moaned and whimpered, "Please help me." Its eyes seemed to shake. और शेर की ओर जाने लगा धीरे धीरे। शेर करा रहा था। उसकी आंखें मानो याचना कर रही थी कि कृपया मेरी मदद करो। When Androclus drew near, in the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androclus saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. On his closer look, Androclus noticed that the big thorn has pierced one of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androclus. एंड्रोक्लस जो उसके निकट पहुंचा तो उसने शेर ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका पंजा चाटने लगा। एंड्रोक्लस ने तभी देखा कि सिर के पंजे में घाव हो गया था और वह सूजा हुआ था। निकट जाने पर एंड्रोक्लस देखा कि बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। एंड्रोक्लस को शेर की वेदना का कारण समझ में आ गया। समथिंग अप ऑल द करेज, एंड्रोक्लस स्ट्रेच्ड हिज हैंड स्लोली टुवर्ड द इंजर्ड पॉ. ही वाज अफ्रेड दैट द लायन वुड अटैक हिम if he touched its swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. वो उसने अपना पूरा साथ बटोरकर एंड्रोक्लस ने धीरे धीरे अपने घायल शेर के घायल पंजे की ओर बढ़ाया। उसे डर लग रहा था कि यदि शेर के सूजे हुए पंजे को छुआ तो कहीं शेर उस पर हमला कर दे, लेकिन शेर उसके नेक इरादे को समझ गया था। एंड्रोक्लस ने अपना बाएं हाथ से शेर का पंजा थामा। एंड्रोक्लस took the paw in his left hand. उसने उसके पंजे को अपने हाथ में थामा। Deftly they pulled out the thorn, और उसने उसके पंजे में चुभे हुए कांटे को बाहर निकाला। Then tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked him arm as if show ग्रेटिट्यूड। एंड्रोक्लस ने अपने पंजा थामा, उससे फुर्ती से उसके कांटे को बाहर निकाल दिया, परंतु उस दयालु आदमी अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर शेर के घायल पंजे पर बांध दिया। वह आश्चर्यचकित हो गया जब शेर अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए उसका हाथ चाटने लगा।
Androclus remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beast. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about. Many times it followed Androclus whatever event. शेर के चलने फिरने लायक होने तक एंड्रोक्लस उसके साथ ही रहा। जंगल में जाकर शिकार करता और अपने भोजन को उस असहाय पशु के साथ बांटकर खाता। शेर के घाव को साफ कर रोज उसकी मरहम पट्टी करता। जल्दी ही शेर चलने फिरने लगा। एंड्रोक्लस जहाँ भी जाता पराया शेर उसके साथ साथ जाता। इन द मीन वाइल एंड्रोक्लस मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज दैट ही स्लेव एंड्रोक्लस हैड रन अवे। सोल्जर वेयर सेंट एंड ऑल डायरेक्शन to capture Androclus. They searched for him high and low but couldn't find him. At last they came the forest where Androclus lived. इस दौरान एंड्रोक्लस के मालिक ने संबंधित अधिकारियों से अपने गुलाम के भाग जाने की शिकायत कर दी। एंड्रोक्लस के पकड़ने जाने के लिए सभी दिशाओं में सैनिक भेजे गए। सैनिकों ने उसे हर जगह पर ढूंढा पर उसके कुछ पता नहीं चला। अंत में जंगल में आ पहुंचे जहां एंड्रोक्लस रहता था। इट सो हैपेंड दैट एंड्रोक्लस एंड गेम गॉन आउट अलोन that day while the lion rested near the cave. Both of them fell into the hand and soldiers. The soldiers took them back to the city. They put Androclus in the chain in a prison. The lion was caged. एक बार एंड्रोक्लस अकेले बाहर गया था। उस दिन शेर गुफा के बाहर आराम कर रहा था, इसलिए वो दोनों सैनिकों के कब्जे में आ गए और सैनिक उन्हें वापस शहर ले गए। उन्होंने एंड्रोक्लस को जंजीरों से बांधकर कैद खाने में डाल दिया और शेर को पिंजरे में कैद कर दिया। शेर को भी पिंजरे में कैद कर दिया और उसको भी जेल में डाल दिया। इन दोज डेज पीपल हु वेयर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम वेयर फेड टू वाइल्ड बीस्ट एज अ पनिशमेंट। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज अ वेरी सीरियस क्राइम एट द टाइम। देयरफॉर एंड्रोक्लस टू वाज टू द थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। उस समय गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंड के रूप में जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाता था। अपने मालिक के पास से भाग जाना एक गंभीर अपराध माना जाता था, इसलिए एंड्रोक्लस का जंगली जानवर के सामने फेंका जाना तय था। ऑन द अपॉइंटेड डेज द एम्परर अराइव्ड एट द सर्कस एंड टुक हिज प्लेस। द क्राउड चीयर्ड लाउडली, द ट्रम्पेटर्स blew the trumpet and Androclus was brought into the arena. His chain were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that this was the last day of his life. अब नियत तिथि को राजा सर्कस के स्थान पर आए और उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। उपस्थित जनसमूह खूब हर्षोल्लास मचाया। तुरही बजा रहे थे, सब लोग बाजा बजा रहे थे। एंड्रोक्लस की मल्लभूमि में लाया गया और उसकी जंजीरें खोल दी गई। वह कमज़ोर और निराश दिखाई दे रहा था। उसे मालूम हो गया था कि वह उसके जीवन का आज अंतिम दिन है। एट द अपोजिट एंड a gate was raised and a ferocious lion was released into the arena. It had been kept hungry to make more ferocious. Androclus was filled with fear, but he put up the brave front. विपरीत छोर का दरवाजा खोला गया और उसमें से खूंखार शेर को मल्लभूमि में छोड़ा गया। उसे खूंखार बनाने के लिए कई दिनों तक भूखा रखा गया था। एंड्रोक्लस भयभीत हो उठा और उसे पर बहादुरी से डटा रहा। The lion saw Androclus and rushed toward him, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its track. Then it moved slowly forward. All its rage seemed to have melted. Androclus saw this too. Each friend recognized the other. एंड्रोक्लस को देखते ही से दहाड़ा और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, पर अचानक ही रुक गया। फिर धीरे धीरे आगे जाने लगा। उसका सारा क्रोध समाप्त हो गया। एंड्रोक्लस ने भी उसे देखा। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को पहचान लिया। To everyone's amazement, the lion bounded towards Androclus again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androclus hugged the lion. He wept with relief and joy. सभी हैरान रह गए। शेर पुनः एंड्रोक्लस के पास बढ़ा और गुर्राते हुए अपनी नाक उसके अंगों पर रगड़ने लगा।
एंड्रोक्लस ने शेर को गले लगा लिया और खुशी से खुलकर रोने लगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर watched this tender sight with a great wonder. People began to cheer Androclus and asked for his release. The emperor asked Androclus to explain the lion's strange behavior. When he heard whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast. He ordered that Androclus should be set free. He would no longer to a slave. राजा सही सभी लोग बड़े हैरान हुए इस दृश्य को देखकर। लोग एंड्रोक्लस के नाम का जय जयकार करने लगे, उसे मुक्त करने की मांग करने लगे। राजा ने एंड्रोक्लस से शेर के इस विचित्र व्यवहार के बारे में पूछा। एंड्रोक्लस ने पूरी सच्चाई सुनने के बाद मनुष्य और पशु के बीच कृतज्ञता और मित्रता के इस अनोखे रिश्ते से राजा भी अभिभूत हो उठा। When the emperor asked Androclus what other reward he would like, Androclus replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lion to be set free too. The two friends went back to the forest to live free life. जब राजा ने एंड्रोक्लस से इसके अतिरिक्त और कुछ इनाम मांगने के लिए कहा तो एंड्रोक्लस ने कहा कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वह चाहता है कि शेर को भी मुक्त कर दिया जाए और अंत में दोनों मित्र मुक्त जीवन जीने के लिए जंगल में लौट आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।